अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशंस के जो इश्यूज़ हैं वो समझ आ गए होंगे और आपने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स भी पढ़ लिए होंगे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 देखेंगे और इसके साथ साथ हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसी कौन सी रीजंस थे और इश्यूज़ थे जिसकी वजह से 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत अरसे तक काम ना कर सका और पाकिस्तान को एक और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना पड़ा और वो था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे सवाल जो हमारा यहाँ से शुरू होता है वो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या वजूहात थी ऐसी या वो कौन से इश्यूज़ थे जिसकी वजह से 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सका और चौधरी मोहम्मद अली को who were the maker of this constitution, Pakistan's first constitution, has to be resigned from his seat on 8th November 1956. The basic reason is that there were no political consensus on the different measures that has been taken in Pakistan's first constitution of 1956, and he has to resign from forcefully. Then the next Prime Minister Hussein Shahid Sarwardi was a seasoned politician and and a leading barrister as well as, and it has been seen that he had been a chief minister of Bengal during the great Calcutta killings of August 1946, and had stayed with Gandhi in Calcutta to keep peace during partition. Mr. Saharwardi had been involved in plan for a united Bengal supported by Hindus and the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, but turned down by Nehru. Saharwardi called him the last barrister, a bridge between the eastern and western wings of Pakistan. और उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान में जो हैं दोनों यानी ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान एक बड़ी अहम हैसियत है। इसके अलावा वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, बट सून इट हैज़ बीन सीन दैट ही हैज़ आल्सो बी resigned from his prime ministership, and the new prime minister was Ian Chandigarh, who Ismail Ibrahim Chandigarh, who was appointed um, as Pakistan's fourth prime minister, and he just served only for 3 months in Pakistan. Then, due to political instability, the seventh Prime Minister, Sir Feroz Khan Noon, was elected, and he was also belongs to a elite class, and he was the High Commissioner of Britain in Hindustan, in India. But his ministries leaves almost for 9 months, and it has been said that the democratic but unstable era saw industrial progress. However, it has been seen that Pakistan had a lot of progress during all these eras, even though it's all based on political instability. And it had been seen that on 7th October 1958, President Iskandar Mirza abrogated the Constitution of 1956, and Muhammad Admiral uh, General Ayub Khan imposed martial law on Pakistan. It was a martial law. As he imposed martial law on Pakistan, General Ayub Khan gave exile to Iskandar Mirza on 27th October 1958, and he became uh, Chief Marshal as well as President of. He was also designated as Prime Minister of Pakistan, and all these actions of General Ayub Khan was welcomed by great public approval. Public was thinking that okay, maybe they will get rid from all civil politicians, and it would be a time of discipline and harmony,
and maybe they will progress a lot. Anyhow, it was martial law, and let's see what was happened during the this regime. एज़ आई टोल्ड यू दैट कि पब्लिक बहुत खुश थी, हमारे अवाम बहुत खुश थे कि पाकिस्तान में एक फ़ौजी हुकूमत आई है, और पॉसिबल है कि ये आइंदा दिनों में हमारे लिए कुछ बेहतर सूरत हाल पैदा करे। अयूब खान ने भी अपने तौर पे कोशिश की कि पाकिस्तान को टोटली रिफॉर्म्स दी जाएं और वो जो एक ख़ास किस्म का निज़ाम हुकूमत है उससे निकला जाए। ये देखने में आया कि इन द अर्ली डेज़, जो इब्तदाई दिन थे, उनमें ये देखने में आया कि फ़ौजी हुकूमत की वजह से काफ़ी सिविल जो मुलाजमीन थे उनको अपनी जगह हाथ धोने पड़े, करप्ट थी, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ। इसके अलावा ब्लैक मार्केटर्स के ख़िलाफ़ भी जो है एक बड़ा सेटअप किया गया और उनको अपसेट हुआ वहाँ पर। और इसी तरह से जो इस वक्त स्मगलिंग कर रहे थे, बॉर्डर्स इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं थे, तो उनको भी ख़त्म करने के लिए पूरी तौर से फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये देखने में आया कि मशरक़ी पाकिस्तान में बिल्कुल भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं थी। इवन वहाँ पे कोई ट्रैफिक के लॉस की भी जो है पाबंदी नहीं कर रहा था। तो ये मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोगों ने कवानीन की पाबंदी शुरू की। लेकिन यहाँ पे जो सवाल इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से, वो ये है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किन बेसिस पे बनाया गया। तो जनरल फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने एक तो डायरेक्ट इलेक्शंस कराए, सॉरी इनडायरेक्ट इलेक्शंस कराए, और अडल्ट जो वोटिंग थी उसको देखा गया। अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे इलेक्शंस हुए, और ही इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट सिस्टम विच इज़ कॉल्ड बेसिक डेमोक्रेसी, in which total 80,000 members from each side has been selected and would be elected, and these electoral college would elect the president of Pakistan. And these elections were held in 1959, and in 17 February 1960 the president Sadr Ayub was elected as the president of Pakistan. The BT system would also run local government and union council. Structurally, this system was designed to provide services to the people. Member would be available locally and be accessible throughout this term instead of only in the election seasons. Culturally, it was a totally different story since a limited electorate was open to corruption and corruptions. Martial law punishments were very harsh, some unwarranted, but as the presence of the military was not resented, reprisals were not vicious. सो इट हैज़ बीन सीन दैट कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो स्मूथ लाइन हुई, और ये बहुत एक ऐसा निज़ाम था बीडी सिस्टम जिसको बेसिक डेमोक्रेसीज का निज़ाम कहा जाता है, कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि यूनियन कौंसल्स और ज़िला कौंसल्स की सतह से इलेक्शंस कराए गए। लोग अपने यूनियन कौंसल्स को इलेक्ट करते थे, वो लोग जो थे अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स को और नाजिम्स को इलेक्ट करते थे। उन नाजिम्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स ने जो है इलेक्ट किए अपने प्रोविंस के मेंबर्स को, प्रोविजनल असम्बलीज़ के मेंबर्स को, यानी सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स को। और आफ्टर व्हेन दे वर इलेक्टेड, यानी जब वो सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स आए, तो उन्होंने इलेक्ट किया कौमी असम्बली के मेंबर्स को, और फिर और जो कौमी असम्बली के अरकान थे उन्होंने पाकिस्तान के पहले सदर को इलेक्ट किया। 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अहम बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन थॉरली जो था प्रेसिडेंशियल था, और इसके अंदर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो सारे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा और उसके मुताबिक काम करता हुआ नज़र आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 250 आर्टिकल्स पर मबनी था, और इसके 12 पार्ट्स थे, जबकि 3 स्केड्यूल्स थे जो कि इन्फोर्स्ड हुए थे 44 मंथ्स, यानी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 3 इयर्स एंड मोर देन 3.5 इयर्स के बाद मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, और 1962 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें सामने नज़र आता है। सदर अयूब खान ने 1958 से 1969 तक तकरीबन 11 साल हुकूमत की पाकिस्तान के ऊपर, और काफ़ी उनकी हुकूमत काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशरी भी रही। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, हमें पाकिस्तान की 65 की वॉर उनके दौर में देखनी पड़ी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा
सनती दौर के हवाले से तरक्की कर रहा था। और हम ये देख सकते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों में जो इंडस्ट्री रेट था वो काफ़ी सेटिस्फाइड था। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी काफ़ी सारी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान सनती तरक्की में इंतहाई तरक्की कर जाएगा। इवन चाइना के अंदर पाकिस्तान का इकनॉमिक मॉडल पढ़ाया जा रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की मीशत पर बुरा असर डाला। उसमें 1965 की वॉर है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसी अरसे के अंदर पाकिस्तान के एक प्लानिंग कमीशन के हेड थे चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब, वो एक्सपोज करते हैं कि ड्यूरिंग दिस रजीम जो हमारी दौलत थी वो पाकिस्तान के 22 बड़े ख़ानदानों के हाथ में नज़र आती है, और बहुत ज़्यादा टैक्स में इजाफ़ा हो जाता है। अगरचे कि हम दरामदाद की निस्बत बरामदाद ज़्यादा कर रहे हैं इस दौर के अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी भी हमें देखनी पड़ी। बहरहाल अयूब खान जो थे, उन्होंने जब ये सारा सिस्टम, जो मैंने ये आपको बेसिक डेमोक्रेसीज़ का सिस्टम बनाया जिसको उर्दू में बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम कहते हैं, और इसकी बुनियाद पे जब उन्होंने इलेक्शंस कराए तो उनका बुनियादी ये ख्याल था कि एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होगा जो लोगों से उनकी राय लेगा, और वो फिर हम उसको इसे डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स भी कहते हैं कि पावर्स एक दूसरे को दी जाएंगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ के बाद ये निज़ाम जो है वो इतनी बड़ी कोई ख़ास तरह से अपना असर नहीं दिखा सका। और बहरहाल जो हमारे सदर अयूब खान हैं, उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का जो दूसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थी जिनको हम अभी पढ़ लेंगे। इसमें सबसे पहले ये था कि एक तो पावरफुल प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, यानी कि सारी की सारी जो ताकत थी वो हमें नज़र आती है कि वो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वक्त के प्रेसिडेंट के पास थी। प्रेसिडेंट जो है उसका मुस्लिम, ही शुड बी मुस्लिम, और एटलीस्ट 40 years ऑफ एज होनी चाहिए, और ही शुड बी क्वालिफाइड to be a member of National Assembly. President would be elected through indirect elections for a period of 5 years, and if president has held office for more than 8 years, he could seek re-election with the approval of the National Assembly or the Provisional Assembly. The National Assembly was given the power to impeach the president, and however it was difficult to achieve. Or president could dissolve the National Assembly, but in that case he must seek री इलेक्शन। अगर वो डिज़ोल्व कर देता है नेशनल असम्बली को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई दूसरा वज़ीर आज़म ला के इम्पोज कर देगा, सदर रख देगा या कैबिनेट लेगा, बल्कि वो Yes, now as I told you earlier that के powers बहुत ज़्यादा हैं प्रेसिडेंट के पास इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और he is the key responsibility to run the government as well as the state. Cabinet is answerable to him, and if cabinet did anything wrong, its responsibility is over president, and all the key appointments in the state were to be made by president, and he can issue any kind of ordinance and declare a state of emergency in the country. um, Same about national assembly. National assembly has consisting of over one house. There was only one legislature, yani unicameral, as it was in 1956, or the basic principle of parity system between two wings, यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों बराबर तरह की नुमाइंदगी लिए हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। और देयर वर टोटल 150 सीट्स, प्लस जो थी 6 सीट्स वर रिजर्व्स फॉर वुमेन, एंड ऑल वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट इलेक्शंस की मैंने आपको बता दी है कि पहले यूनियन काउंसलर, ज़िला काउंसलर, फिर सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स एंड द नेशनल असम्बली मेंबर्स, एंड दे विल इलेक्ट the member of their house as well as the head of the state, that should be president according to the constitution of 1956. And the members should be almost 25 years old, age limit होनी चाहिए उनकी, और
National Assembly had all the powers of lawmaking, but law was to be finally ratified by the president. President is the last authority who has been signed to impose a bill or reject a bill, and even he can reject or return the bill to the House. Financial powers of National Assembly were limited. Only new expenditures could be voted. National Assembly could not reject consolidate fund list and recurring expenditure. Federalism. As we know, Pakistan is a federal state. It has been declared in objective resolution, then in the Constitution of 1956, and after that in 1962. It has also been observed that there were two provinces of the federation, East Pakistan and West Pakistan, and there would be a central center. So the list has been divided among central list and provisional parts, and then रिकरेंस इश्यूज, यानी कि जो दोनों जगह पे आपस में मिलजुल के पावर्स को इंजॉय किया जा सकता है. प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जो थी, दे मस्ट हैव देयर हेड. जो गवर्नर है जो कि इसका हेड होगा, और ही विल कंट्रोल्ड अंडर president. He is answerable to president of Pakistan. He has very strong powers as a president has in center, and the same powers are can be enjoyed in provinces. In case of emergency, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोविंस, और यानी कि अगर किसी भी सूरत का कोई इशू होता है तो फेडरल के पास इख्तियार है कि वो प्रोविंसेस के ऊपर अपनी जो है अथॉरिटी को यूज़ कर सकता है, या किसी भी किस्म की इमरजेंसी या ऑर्डिनेंस जो है इम्पोज किया जा सकता है. प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर ये है कि नेशनल सॉलिडरिटी को कायम करने की, यानी कौमी यकजहती को कायम करने की पूरी कोशिश की जाएगी. लोगों के जो स्पेशली जो लोग बैकवर्ड हैं उनके लिए कोशिशें की जाएंगी, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, और सबको नेशनल जो कौमी सतह पर सबको बाकायदा प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होंगी. एजुकेशन और लोगों की भलाई के लिए काम किया जाएगा. इस्लाम को जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ में इम्पोज करने की पूरी कोशिश जाएगी, यानी कि हम इस्लाम के मुताबिक काम करेंगे. इसके सेलिएंट फीचर्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सबको हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाजिम है कि वो फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं. पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया था. जैसे ही मार्शल आया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया था. और यहाँ पे मुझे बताना पहले याद नहीं रहा कि जो इलेक्शंस हुए थे वो नॉन पार्टी बेस्ड हुए थे, यानी कि देयर वाज नो पार्टी इन द इलेक्शंस ऑफ 1959 दैट वाज held in Pakistan. अकॉर्डिंग टू बेसिक डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टीज बैन नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक एक्ट मंजूर कराया गया है किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर काम हो सकता है. इस्लामिक प्रोविजंस भी थी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी, लेकिन ये जो इस्लामिक प्रोविजंस थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जितनी थी वो इसका हिस्सा थी, और कहा गया था कि मज़ीद भी हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐड करें इस्लाम के मुताबिक. और उसमें एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो थी वो सेटअप की गई थी, जिसके अंदर ये था कि वो 5 to 12 मेंबर्स थे, और ये रिकमेंड करना था, इस बॉडी का काम था कि इस्लाम के हवाले से लॉ को इम्पोज करने के लिए अपनी सिफारिशात पेश करे. इसके साथ साथ एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया गया. ये भी यही इसका पर्पज़ था कि पाकिस्तान को एक मुस्लिम सोसाइटी बनाने के लिए और इसकी एक आइडेंटिटी कायम करने के लिए हम जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए, और जहाँ पे हम उसी तरह से काम करते रहें. ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन्फोर्स हुआ था 8 जून को, और ये 25 मार्च 1969 तक जो था इम्पोज रहा था. प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी थी. अगरचे हम देखते हैं कि ये दौर मार्शल लॉ का ही दौर था, हत्ता के इलेक्शंस हुए, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह थी. स्पेशली जो हमने इस दौर में 1965 की वॉर देखी, और उसके बाद जो सूरत हाल मशरक़ी पाकिस्तान में पेश आई, हर हुकूमत पाकिस्तान ने या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने जिस तरह से उसको दबा के रखा, उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो हमें 1971 में नज़र आते हैं, और वहाँ पे जो तहरीकें शुरू होती हैं वो नज़र आती हैं. और 1971 में हम ये देखते हैं कि 65 की वॉर के बाद 69 में अयूब खान के ख़िलाफ़ बहुत सारा एहतजाज होता है थ्रू आउट दी पाकिस्तान, स्पेशली बंगालीज़म की तरफ से. फिर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि
کچھ ان کے خلاف کرپشن کیسز بھی سامنے آتے ہیں، اور بہرحال وہ اپنی حکومت بجائے اس کے کہ پاکستان میں الیکشنز کرا کر کسی سویلین کو اور پاکستان کے کسی نمائندے کو حکومت دیتے، انہوں نے پاکستان کے تیسرے مارشل ایڈمنسٹریٹر کو حکومت دے دی، جو کہ دوسرے مارشل ایڈمنسٹریٹر کو حکومت دے دی، جو کہ جنرل یحییٰ خان، اور جنرل یحییٰ خان نے جب یہ الیکشن جب حکومت سنبھالی تو اس دور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کروائے گئے، اور یہ پاکستان کے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ، جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نمائندگی حاصل کرتی ہے، لیکن دونوں صوبوں میں کوئی ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ قومی سطح پر سامنے نظر آتی ہو، تو نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب کس طرح سے حکومت کس طرح سے سونپی جائے۔ یہاں پہ ہمیں شیخ مجیب الرحمان سامنے نظر آتے ہیں عوامی لیگ سے، جو کہ بہت بھاری اکثریت سے مشرقی پاکستان میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنایا جائے اور ان کو اختیارات دیے جائیں، اور وہ ساتھ ہی 6 پوائنٹس دیتے ہیں جو کہ ہمارے وفاق کو قبول نہیں ہے، جنرل یحییٰ خان کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو یہ قبول نہیں تھا، اور نتیجتاً جب ہم اسے اتفاق نہیں کر پاتے تو 1971 جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس وار کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک پاکستان الگ ہو کے مشرقی پاکستان وہ بنگلہ دیش بن جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس باقی کچا چھٹا پاکستان مغربی پاکستان اب جو بچا کھچا پاکستان ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں آیا، اور انہیں 20 دسمبر 1971 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر کے اختیارات منتقل کر دیے گئے، معاشلہ ختم کر دیے گئے۔ آلموسٹ اس وقت اختیارات وہ تھے جو معاشلہ میں ایک شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ جب بھٹو صاحب حکومت میں آئے، کیونکہ وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے یہاں پر کانسٹیٹیوشن کمیٹی قائم کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم ساری بھاری صنعتیں، جو بڑی بڑی صنعتیں، ان کو ہم نیشنلائز کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم شہری طبقے کے لیے اور زرعی طبقے کے لیے ہم اصلاحات کا نفاذ کرنے جا رہے ہیں۔ بھٹو اگرچہ انقلاب سے تھوڑا سا بچنا چاہ رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں تک ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی سیاسی رساکشی ہے جس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پر نظر آتے ہیں، بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہاں پہ جیسے کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بنگالی اور اردو کا جھگڑا اتنا زیادہ تھا کہ ہم سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، اور اب سندھی اور پنجابی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، اور ان کے درمیان بڑے فسادات ہونے لگے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی جذباتی تقریریں کی، اور بہت حد تک صنعتی اور تجارتی مفاد پرستوں کو جو تھا روکنے کی کوشش کی کہ وہ سیاست کے زمرے میں آ کر پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دیں۔ بھٹو نے اپنے طور پہ پاکستان کے اندر کافی ساری اصلاحات نافذ کروائیں، لیکن ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، جو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے پوری کوشش کی کہ جو کانسٹیٹیوشن میکنگ ہے اس کو ایک ایسا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو دیا جائے جس پہ سب لوگ متفق ہوں، اور کوئی ایسا تنازع نہ ہو جس طرح سے پہلے دونوں کانسٹیٹیوشن میں رہا، اور ہم پاکستان کے لیے ایک بہترین اور مضبوط کانسٹیٹیوشن فراہم کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے قریبی مشاورتی جو لوگ تھے ان کو بلایا، اور ایک کانسٹیٹیوشن کی فریم ورکنگ کی، اور ایک ایسا کانسٹیٹیوشن دینا چاہا جس کو کوئی اب سسپینڈ نہ کر سکے یا ایبروگیٹ نہ کر سکے، جو ایسا کرے گا اس کو پھانسی کی سزا کا کہا گیا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرومیننٹ فیچرز ہیں، وہ سب سے پہلے بڑا ڈفرینٹ سا فیچر یہاں پہ آیا، وہ ہے پارلیمنٹری سسٹم۔ جیسے کہ ہم 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی
सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम इंजॉय किया हमने। प्रेसिडेंट के पास उस वक्त बहुत सारे इख्तियारात थे, इसी वजह से हम देखते हैं कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई 16-17 महीने तक काबिल अमल रहा, उसमें बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर तब्दीलियाँ की गई, आए दिन वज़ीर आज़म बदले जाते रहे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को खासी जगह दी गई और कहा गया कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तियारात को बैलेंस किया जाएगा। सदर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर head of government होगा। President must act on the advice of Prime Minister and all his orders were to be countersigned by Prime Minister. Prime Minister was to be elected by the National Assembly and Prime Minister exercise all executive powers, यानी कि जो आप इंतज़ामी ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर शुड बी आंसरेबल टू द नेशनल असेंबली एंड इन 1985 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वर इंक्रीज्ड। ये जो हम 8th अमेंडमेंट का जिक्र करते हैं, ये वो 8th अमेंडमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई और ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई और उसके नतीजे में हमने बहुत सारी देखा कि बहुत सारी कैबिनेट्स ख़त्म की गई और प्राइम मिनिस्टर्स जो थे उनकी हुकूमतें ख़त्म की गई। और फिर हम देखते हैं कि 13 अमेंडमेंट आई और जिससे प्रेसिडेंट से ये पावर्स फिर ले ली गई और बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो इसके फीचर्स थे ये थे कि प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट शुड बी एटलीस्ट 45 ईयर्स ऑफ एज और वो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसके पास जो है वो 5 साल हैं जब तक वो हुकूमत कर सकता है। प्रोविशनल और नेशनल असम्बलियाँ में 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होती हैं। फेडरल सिस्टम वही जो हमारे पास पहले सिस्टम था वही फेडरल सिस्टम किया गया। हमारे पास अब 4 प्रोविंस थे। पहले हम दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर 2 प्रोविंसेस के साथ चलते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान जिसके अंदर पंजाब, सरहद, सिंध, बलोचिस्तान चारों को ज़म कर दिया गया था। लेकिन अब हमारे पास जो फेडरेशन है 1971 के बाद, उस फेडरेशन के अंदर हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, सरहद एंड केपी के, और कुछ हमारे पास फेडरल एरियाज़ हैं। यहाँ पे भी वो 2 बेसिक लिस्ट बनाई गई, एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविजनल लिस्ट थी, बाकी जो थी वो कंकरेंट लिस्ट थी, कुछ ऐसी पार्ट जो कि सूबों और प्रोविंसेस के दरमियान शेयर होती हैं। प्रोमिनेंट फीचर्स में इसके मज़ीद जो आता है वो आते हैं 2 हाउसेस। बिल्कुल यहाँ पे ये पहली दफ़ा हम जो पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन थे, अगर हमें एक कंपैरिजन करना पड़े दोनों तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनके अंदर ऐसा था कि यूनी कैमरा सिस्टम था, यानी एक ऐवान था। लेकिन अब हमारे पास बाई कैमरा सिस्टम है, 2 ऐवान हैं और एक हमारे पास सेनेट है, अपर हाउस, और जो लोअर हाउस है उसको हम कहते हैं वो है नेशनल असेंबली। ठीक है, जो अपर हाउस है वो इक्वल मेंबर्स होंगे, सारे सूबों के तमाम मेंबर्स इक्वल होंगे। ट्राइबल एरियाज़ को भी सीट दी गई, वुमेन्स और टेक्नोक्रेट्स को इसके अंदर सीट्स दी गई। जबकि और ये जो सेनेट है ये परमानेंट हाउस है, ये इसके हाफ मेंबर्स एक दफ़ा 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं और दूसरे हाफ मेंबर्स जो हैं अगले 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। ये हमेशा डिज़ोल्व नहीं हो सकता, हमेशा कायम रहते हैं। हाँ, जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली जिसको हम कहते हैं या कौमी असम्बली के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसके अंदर पॉपुलेशन बेस्ड है और इसके लिए जो है पहले फ्रेंचाइज जो थी 21 ईयर्स थी, लेकिन मुशर्रफ रजीम के अंदर अमेंडमेंट करके इसको 18 ईयर्स कर दिया गया है। इसके अंदर 342 सीट्स हैं अब, लेकिन इससे पहले 210 सीट्स यानी 210 सीट्स थी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, एरियाज़ इंक्रीज़ हो गया, तो इस वजह से सीट्स भी इंक्रीज़ कर दी गई हैं। वुमेंस की सीट्स 60 हैं जो कि उनको कोटा सिस्टम के तहत दी गई हैं। और ये जो हम इलेक्शंस होते हैं इस प्रोविशनल नेशनल असम्बलीज़ के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम नेशनल असम्बलीज़ के मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं और प्रोविशनल असम्बली को। शायद आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, छोटा वोट बड़ा वोट। छोटा वोट से मुराद है कि हम अपनी अपनी कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और बड़े वोट से मुराद है कि हम वफाकी असम्बली के मेंबर्स को, यानी MNA को। MNA stands for Member of National Assembly, MPA stands for National Members of प्रोविशनल असम्बली। और प्रोविशनल स्ट्रक्चर भी आलमोस्ट वैसा ही है। पंजाब की असम्बली के अंदर 371 सीट्स हैं, सिंध के अंदर 168 हैं, NWFP के अंदर 124 हैं, ये KP के है, बलोचिस्तान 65 है। और काफ़ी प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई है। अब प्रोविंसेस बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी खुद मुख्तार हैं। पहले एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन थी, अब उसको बैलेंस किया गया है। फिनांस बहुत सारा सूबे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल पॉलिसी वही है कि हम सबको इक्वल राइट्स देंगे और फंडामेंटल राइट्स हासिल होंगे। हमारे यहाँ इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं वो दी गई हैं।
کہ اسلام پاکستان کا یہ ہاں اس کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو ایک سوال بھی اسائنمنٹ میں دینا ہے کہ پروسیس آف اسلامائزیشن ان پاکستان کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے دونوں کانسٹیٹیوشنز کی نسبت 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسلامک پروویژنز زیادہ ایڈ کی گئی ہیں۔ پہلی دفعہ اسٹیٹ ہیڈ جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا وہ اسلام ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بڑی اہم بات جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایڈ کی گئی اور امینڈمنٹ کے ذریعے ایڈ کی گئی وہ تھی ڈیفینیشن آف مسلم۔ یہ ہمارے ہاں آئی تھنک سو پہلی امینڈمنٹ جو تھی وہ مسلمانوں کی تعریف کے لیے کی گئی۔ قادیانیوں کا ایک ایشو بہت زیادہ ہے اور اس میں کہا گیا کہ مسلمان وہ ہے جو کہ نہ صرف یہ کہ اللہ ایک ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری نبی مانے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کونسل آئیڈیالوجی کونسل کام کی گئی، فیڈرل شریعت کورٹ کچھ عرصے بعد قائم کی گئی۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اسلامک فیچرز تھے، اس میں بہت سارے بھی اسلامک فیچرز ہیں۔ You should read it in details and add them in your assignments as well as نیشنل لینگویج جو تھی وہ اردو ڈکلیئر کی گئی، انگلش آفیشیل لینگویج ہوگی فار دا نیکسٹ 20 ایئرز۔ ابھی بھی ہمارے ہاں ایک جسٹس جواد صاحب تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اردو کو ایز اے آفیشیل لینگویج امپوز کیا جائے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں اس طرح سے کام نہیں ہو سکا۔ نیشنل سیکورٹی کونسل قائم کی گئی تاکہ کسی بھی قسم کی سیکورٹی ایشوز پہ بات ہو سکے۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری واز دا بیسک پارٹ آف آر دس کانسٹیٹیوشن، اور بہت ضروری ہے ایک ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی جوڈیشری ہونی چاہیے۔ یہ تھے کچھ سیلین فیچرز۔ آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، میں نے 1 2 3 ان تینوں سوالوں کو آپ نے ان سمر ویکیشنز میں لکھنا ہے، اپنی اسائنمنٹس بنانی ہے اور اس کو سبمٹ کرانی ہے۔ ایک کوسچن اور بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، وہ میں خیر بعد میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ وہ ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا اسلامک فیچرز آف آل دیز 3 constitution 1956 62 and 63. If you have any question and queries you can ask me directly from WhatsApp and or through WhatsApp and can email as well as best of luck for your summer vacations. Hope you will good job during these vacations and have a برکتوں سے بھرا ہوا رمضان رکھو اور دعائیں کرو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔